آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، پورا سال آسانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ 2 سفر پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر آج تک کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات یہ 3 کام لازمی کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ سفر کی 2 تاریخ کو یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ماہ سفر کی پہلی جمعرات کو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ لیا ہوتا۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ دوستو وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بد قسمت اور بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کے سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا، اور بہت سارے بد قسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ماہ سفر کی 2 تاریخ اور پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے گا ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گا، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے،
दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे, एकदम से इतना रिज़्क और दौलत आएगी, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेगा, जिस दुकान पर गाहक नहीं आता गाहकों का रश लग जाएगा, इतना रिज़्क इतनी दौलत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने सफ़र के महीने की आज तक कदर ही नहीं की। ये महीना तो लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, अगर आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह करीम से मांगें, इंशाअल्लाह आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो आए नाजरीन, अब चलते हैं आज के मुजर्रब वजीफ़े की जानब और आपको बताते हैं कि ये अमल आपने कैसे करना है और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज माह सफ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। जब आप लोग दरूद पाक एक मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें यहाँ पर नाज़िल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि दरूद पाक आप कसरत से पढ़ा करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत कर लें। अगर आपको रिज़्क चाहिए तो आज अल्लाह से रिज़्क मांग लो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग लो, बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मांग लो। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, आप उसकी नीयत कर लें कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। माह सफ़र की पहली जुमेरात के दिन जो चाहो मांग लो, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने काम करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक मुबारक नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या क़हारू को पढ़ना है। या क़हारू रब करीम का एक ऐसा सिफ़ाती नाम है जिसे गैबी मुवक्किल भी कहा जाता है। जो लोग सफ़र के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही व बर्बादी के खौफ से, जादू जिन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं कि कहीं नया काम शुरू किया तो नुकसान ना हो जाए, तो वो लोग आज माह सफ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात के दिन या क़हारू का ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह पूरा महीना दिल खोल कर जो काम करना चाहते हैं करें, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, जो कुछ करना है करें। आज आपको किसी भी तरह की नहुसत से, किसी भी तरह के हादसे से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल बता रहा हूँ। आज आपने पहले नंबर पर या
कहारू को पढ़ना है। या कहारू पढ़ने से आपके करीब गैबी मुवक्किल हाजिर हो जाता है जो आपकी हिफाजत फरमाता है, जादू जिन्नात की तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। या कहारू रब करीम का वो नाम है जो जादू जिन्नात और तमाम बंदिशों का आखिरी हल है, जो कहता है कि मैं वजीफ़ा पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन फिर भी जादू जिन्नात के असरात ख़त्म नहीं होते, मेरे घर से बेसुकूनी और बेबरकती का खात्मा नहीं होता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज या कहारू को पढ़ें। शर्त यह है कि आपने सफ़र की पहली जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ना है। आपने या कहारू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू दो बार हो गया, या कहारू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या कहारू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप माह सफ़र का आगाज़ होते ही या कहारू 11 बार पढ़ लेंगे तो पूरा महीना रब की हिफाजत नसीब होगी, पूरा महीना सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। इंशाअल्लाह हर तरह की नहुसत, हर तरह की परेशानी और मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और आप एक आज़ाद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। या कहारू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो काम करना है, वो काम, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। आपने माह सफ़र का आगाज़ सूरत फातिहा पढ़कर करना है। सूरत फातिहा की फजीलत और बरकत मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब आप सूरत फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। सूरत फातिहा को आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़ुबानी याद होती है क्योंकि हर मुसलमान इस सूरत मुबारक को नमाज के अंदर पढ़ता है। आज माह सफ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात के दिन जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा, ये 3 अमाल पढ़ लिए जाएंगे, वो घर इसी साल इंशाअल्लाह दौलतमंद बन जाएगा। ये जो अमाल मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहद आज़मूदा हैं, लोगों ने इनसे बेशुमार फ़ायदा उठाया है। आप खुद कहेंगे कि सफ़र का महीना नहुसत से पाक है, परेशानियों से पाक है, मुसीबतों से पाक है। सिर्फ माह सफ़र के आगाज़ में ये 3 अमाल करने की देर है। आपने सूरत फातिहा को दूसरे नंबर पर 7 बार पढ़ना है और 7 बार सूरत फातिहा पढ़ते दौरान अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप 7 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो अल्लाह करीम आपकी 7 हाजात को इंशाल्लाह पूरा फरमाएगा। सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं जो माह सफ़र की 2 तारीख और पहली जुमेरात के दिन का ख़ास और शर्तिया अमल है। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर या हफीज़ु या सलामु को पढ़ना है। जिस घर में कोई एक शख्स भी माह सफ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात के दिन या हफीज़ु या सलामु को पढ़ लेगा, अल्लाह की ऐसी हिफाजत नसीब होगी कि दुनिया वाले आप पर जादू जिन्नात का अमल करवाएंगे, वापस उसी पर पलट जाएगा। जो कोई आपका बुरा चाहेगा, जो कोई आपके सामने रुकावट या बंदिश पैदा करेगा, हर तरह की नहुसत से, हर तरह की जादू जिन्नात के असरात से, हर तरह की शैतानी और ज़मीनी आसीब से अल्लाह की हिफाजत नसीब होगी। और जब कोई बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने या हफीज़ु या सलाम को किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हफीज़ु या सलामु 1 बार हो गया, या हफीज़ु या सलामु 2 बार हो गया, या हफीज़ु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हफीज़ु या सलामु को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आप फिर से दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब, सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और 1 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है और फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 21 बार या हफीज़ु या सलाम
मुंह पढ़ना है और आखिर में फिर से एक बार दरूद पाक पढ़ना है। आपने माह सफ़र की 2 तारीख पहली जुमेरात के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफे को पढ़ने के बाद आप अपने हाथ से जितना हो सके सदका खैरात करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। सफ़र के आगाज़ में सदका बहुत ज़रूरी है। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। मौला करीम तू राज़क भी है, तू खालक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पर कादर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हजात को पूरा फरमाए। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।